संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित करके लौटा दिया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। आइए देखते हैं इन विनियोग विधेयकों पर हुई अहम चर्चा का सारांश। Srimati Nirmala Sitharaman. Honorable Chairman, sir. Minister. On behalf of my senior colleague, Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2019-20 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Kashmir Appropriation Bill 2020, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2020, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill Number 4 2020, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2020. So this you have moved all this for. I have moved one. Shall I move others? Because we have decided to discuss them combinedly. Sir, on behalf of my senior colleague Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2019-20 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Chairman, sir, on behalf of my senior colleague Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of financial year 2020-2021 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Sir, on behalf of my senior colleague Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2019-20 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Motions moved. The motions for consideration of the Jammu Kashmir Appropriation Bill 2020, the Jammu Kashmir Appropriation Number 2 Bill, please, 2020, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 4 Bill 2020 and the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2020 are now open for discussion. Sri Ghulam Nabi Azad ji, Leader of the Opposition, to initiate the discussion. Please. माननीय चेयरमैन सर, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो चारों एप्रोप्रिएशंस बिल हैं उन पे बोलने के लिए खड़ा हुआ। कितना ही अच्छा होता कि जिन बिल्स पे आज इस राज्यसभा में या इससे पहले लोकसभा में चर्चा हुई, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होते। ऐसे हालात में इन बिल्स पे जहां चर्चा हो रही है, जबकि पूरा दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और उससे निकलने की कोशिश कर रही है। क्वारंटाइन दुनिया में कई लोग हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 7.5 महीने से पॉलिटिकल क्वारंटाइन में। हमें भी उससे निकलने की जरूरत। जिस स्टेट को एक वक्त बिल्कुल एट द ब्रिंक थी, कत्लेआम हो रहा था, रिट्रीव करना मुश्किल होता था, जिस स्टेट में अपने ही लोग लाखों की तादाद में वहां छोड़ के चले गए थे, लेकिन तभी इस तरह का केंद्रीय सरकार की तरफ से निर्णय नहीं हुआ। भाजपा की भी सरकार रही और बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट लीडर जिनको आज तक हम समझते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने भी जनता के साथ वादे किए थे
लेकिन पार्टी के वादे से देश ज्यादा बड़ा होता। पार्टी को मजबूत करने से देश को इकट्ठे रखना सबसे बड़ी ताकत, और सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी रीजन, सभी रिलीजन का विश्वास प्राप्त करने के लिए पार्टी को भूल जाना होता है और देश को नजर में रखना होता है, जो कि इस सरकार ने नहीं रखा। तो ये आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, इस पे मैं 2-4 बातें बताऊंगा, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बीमार को आपने वेंटिलेटर पर रखा। ये बजट से पहले आपको पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ेगा, और जिस चीज की, जिस दवाई की उसको जरूरत है, वो दवाई उसको देनी होगी। तो हमें इसका इलाज जो करना होगा, स्टेटहुड वापस करनी होगी तुरंत, बिना किसी डिले। आपको लैंड राइट्स देने होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आपके हिमाचल में है, वहां कोई आर्टिकल 370 नहीं है। आपको नौकरी के इख्तियार देने होंगे। ये 3 बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू और कश्मीर के बीच में और कारगिल के बीच। सिर्फ विवाद था लेह डिस्ट्रिक्ट के बीच। लेह डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी चाहते थे, दे दीजिए उनको, लेकिन लैंड और नौकरी के बारे में वो भी कश्मीर और जम्मू के साथ चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई लैंड वहां बाहर वाला खरीदे या नौकरी दोबारा वाला खरीदे। तो जब जम्मू वाला नहीं चाहता, कश्मीर वाला नहीं चाहता, लद्दाख वाला नहीं चाहता, तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो? बीजेपी वाला नहीं चाहता, कांग्रेस वाला नहीं चाहता, एनसी वाला नहीं चाहता, पीडीपी वाला नहीं चाहता, नेशनल पार्टी वाला नहीं चाहता, रीजनल पार्टी वाला नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, ईसाई नहीं चाहता, बौद्ध नहीं चाहता, जैन नहीं चाहता, तो ये कानून किसके लिए? माननीय चेयरमैन साहब, ये जो बजट, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। 1 लाख से ज्यादा बजट दिखाया गया है, पैसा दिखाया गया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये मिसलीडिंग। इस पे जो खर्चा है 14% की बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन वास्तवता में 6-7 से 8% ही बढ़ेगा रियल टर्म में। और इंक्रीज दिखाया है खर्चे में 12% ज्यादा, जो कि नेशनल इंक्रीज से कम है। दूसरा 53% जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पर, तो 53% तो इसी में चला गया। बाद में डेवलपमेंट के लिए क्या रहा? फिर ये कहा है 4,000 करोड़ हम लोकल रेवेन्यू, लोकल बजट मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। यूटी में कौन सा आपका ऐसा एरिया है जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे? कौन सी खदानें हैं? आपने कैपिटल बजट जो पब्लिक इंजीनियरिंग है उसमें 38% कम किया। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जो कि तबाह और बर्बाद हो गया इन 7 महीनों में सरकार के गलत निर्णय की वजह से, उसमें कैपिटल बजट 0.75% कम कर दिया गया है। आप कहते हैं कि हम स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाएंगे। डेवलपमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होती। एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में जो चाहे नेशनल लेवल में है, लेकिन कश्मीर में उसकी प्रेजेंस सब रीजनल, रीजनल भी नहीं है बीजेपी की, सब रीजनल। तो एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी
को खुला छोड़ दिया है। उनमें कोई जेल में नहीं है, उनमें कोई नजरबंद नहीं है, उनमें स्टेट से बाहर कोई नहीं है। लेकिन उस सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के जो विरोधी हैं, स्टेट में जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनको पराजय देते हैं, वो सब स्टेट और स्टेट से बाहर जेल में हैं। और ये सरकार कहती है हम उस स्टेट का विकास करेंगे। टूरिज्म खत्म कर दिया। पिछली सरकारों ने जो हालात बनाए, उनमें बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार भी मैं कहता हूं, और कांग्रेस की सरकार, टूरिज्म बढ़ गया, मिलिटेंसी न होने के बराबर होगी, यात्राएं होने लगी। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड लोग जाने लगे दूसरे सूबों से। इंडस्ट्री बढ़ने लगी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन क्या सोचा, कभी हमने ये नहीं सोचा कि कभी अपनी ही सरकार धोखे से ये कह दे कि भाई सिक्योरिटी का कुछ हो गया, कहीं एक बंदूक पकड़ी तो सब टूरिस्ट विड्रॉ हो जाओ, सब यात्री विड्रॉ हो जाओ। तो वो खतरा क्या था? वो बिल जिस तरीके से सदन में आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आर्टिकल 370 खत्म, काउंसिल खत्म, स्टेटहुड खत्म, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। और जो स्टेट ऐसे जा रही थी जम्मू कश्मीर की, वो ऐसे चली गई। आज से 30 साल पहले जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर था, उससे भी बदतर हालत आज जम्मू कश्मीर में। मैंने उस सदन के जवाब सुने कि करप्शन खत्म होगी। बिल्कुल करप्शन खत्म होगी, जब काम ही नहीं हो रहा तो करप्शन किस लिए? घर में बैठ के तो करप्शन कोई देगा नहीं। सड़क पे तो कहीं काम चल नहीं रहा, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग तो कहीं बन नहीं रही, हॉस्पिटल बिल्डिंग जो मेरे वक्त में 5 मेडिकल कॉलेज दिए, वो आपसे अभी तक 6.5 साल में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा। बैंक डिफॉल्टर सारे हो गए हैं। ये सरकार ने गलती की है, क्या सरकार उसको कंपनसेट करेगा? 7 लाख एक अनुमान है, 7 लाख फैमिलीज, 7 लाख फैमिलीज का होगा तकरीबन 40 से 50 लाख लोग की लाइवलीहुड टूरिज्म की वजह से, एप्पल इंडस्ट्री की वजह से और हैंडीक्राफ्ट खत्म होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की जम्मू की तो 50 से 60% खत्म हो गई, और कश्मीर की तो तकरीबन 90% स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले, 5 साल पहले, जब उनकी सरकार बनी थी पीडीपी के साथ 2015 में 80 करोड़ के पैकेज की बात की थी। 6 साल बाद सिर्फ 48% उसमें से खर्च हुआ, 52% अभी भी खर्च नहीं हुआ। तो 6 साल आपको लगते हैं 48% खर्च करने में, 7 साल लगेंगे आपको दूसरा 52% खर्च करने। इसलिए आप यहां 1,28,000 करोड़ बताइए, खर्चा तो उतना ही होना है जितना हमें मालूम है। तो आपके इस एक झटके से गुरूर से जम्मू और कश्मीर का जो इतिहास था, जो कल्चर था, सभ्यता थी, भाईचारा था, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो आपने एक झटके से 1 मिनट में खत्म कर दिया। इन्हीं के साथ मैंने इस आशा के साथ कि अगला कुछ महीनों में यहां स्टेटहुड वापस दी जाएगी, जमीन का इख्तियार और नौकरी का इख्तियार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों पर होगा, और अगला बजट जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद संवाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर चर्चा भी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। $370 का जाना,
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के इतिहास में 370 का जाना 3 क्रांति का द्योतक है। एक तरफ लोकतंत्र का सशक्तिकरण और हाशिए के लोगों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये 370 के बाद की स्थिति है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर राज्यसभा में गंभीर चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य की माली हालत और विकास योजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी। वहीं कई सांसदों ने विनियोग विधेयक का समर्थन किया। देखते हैं इस अहम चर्चा का सारांश। श्री राकेश सिन्हा। उपसभापति महोदय, जब हम जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर आज बहस कर रहे हैं और मैं विपक्ष के नेता को सुन रहा था, उन्होंने एक बात की हिदायत दी कि हम पुराने विवादों को ना आज छेड़ें, लेकिन ऐसा करते करते हुए उन सब बातों को कह गए और कांग्रेस के शासन में जो कमियां थी उसको छिपाने की जितनी कोशिशें हैं वे करते रहे। मैं स्वयं उन विवादों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस देश की जनता को जानना और समझना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर की फिजा में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन असाधारण परिवर्तन है। 370 का जाना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के इतिहास में 370 का जाना 3 क्रांति का द्योतक है। पहली क्रांति सामाजिक क्रांति है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, उस राज्य में लगभग 30% ओबीसी के लोग रहते हैं जिनका अब तक कोई काउंटिंग नहीं हुई। 10 से 12% शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सिर्फ 2% रिजर्वेशन मिलता था। उपसभापति महोदय, पहली बार एक बैकवर्ड कमीशन की स्थापना हुई है। जिस रिजर्वेशन की बात हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे, उस रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और अन्य जो हाशिए के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की मॉडलिटी तय करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री GD शर्मा जी के नेतृत्व में पहली बार बैकवर्ड कमीशन की स्थापना भारत सरकार ने, वहां जम्मू कश्मीर सरकार ने की है। मैं पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी को रिजर्वेशन जिस तरह से अन्य राज्यों में मिलता है, उस आधार पर रिजर्वेशन क्यों नहीं मिले? और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एसटी, एससी और ओबीसी को वह सम्मान नहीं दिया, वह अवसर नहीं दिया जो अन्य राज्यों में मिलता था। कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद इस स्थिति को सरकार ने बदल दिया है। मैंने सामाजिक क्रांति की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में 3000 रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, हमारे विपक्ष के नेता को जानना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि 3000 रिफ्यूजी को समान अधिकार क्यों नहीं प्राप्त थे। उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी? उन्हें जम्मू कश्मीर के चुनावों में मत देने का अधिकार क्यों नहीं था? 370 के जाने के बाद उनको वह अधिकार दिया गया। 370 के जाने के बाद जो दूसरी क्रांति हुई उसको मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन।
सामाजिक क्रांति के बाद एक जनतांत्रिक क्रांति हुई। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का मतलब क्या था। उस लोकतंत्र का जो तात्पर्य था, मुट्ठी भर परिवार और मुट्ठी भर जम्मू कश्मीर के कुलीन। क्या यह बात दुनिया से छिपी हुई है? कुछ परिवारों ने, कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। चुनाव ही लोकतंत्र नहीं है। चुनाव लोकतंत्र का एक साधन मात्र है। दिस इज ए टूल फॉर ए डेमोक्रेसी। चुनाव के द्वारा तो स्टालिन भी जीत कर आता था। चुनाव के द्वारा तो हिटलर भी जीत कर जर्मनी में आया था। वास्तव में लोकतंत्र का तात्पर्य होता है एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की सशक्तिकरण करना, यह लोकतंत्र का मूल अर्थ होता है। वह लोकतंत्र का सशक्तिकरण कैसे हुआ? विपक्ष के नेता ने बड़े आसानी से कहा कि हम सब रीजनल पार्टी हैं। हम जम्मू में भी हैं, लद्दाख में भी हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हमें 81 सीटें मिली हैं। 217 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिले हैं। 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हैं। 8 सीटों पर पैंथर्स पार्टी जीती हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जो यह भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि 4 वोट 3 वोट, 98% वोटिंग ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हुआ है। आज की सूचना के तंत्र की दुनिया में किसी व्यक्ति को बरगलाया नहीं जा सकता है, और सदन में कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे आम लोगों को और दुनिया के, भारत से बाहर बैठे हुए यूरोपियन यूनियन में भारत विरोधी कुछ सीनेटर्स को, कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठे हुए लोगों को यह संदेश जाए कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। 370 के जाने के बाद एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ है। आर्थिक क्रांति हुई है। वो आर्थिक क्रांति क्या है? जब राज्यपाल का शासन था तो हमने एक रोशनी एक्ट को समाप्त कर दिया था। यह रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट के रूप में लाने के लिए धन संग्रह का एक तरीका था। सरकारी जमीन पर जो सामान्य लोग या कुलीनों ने जो कब्जा कर लिया था, सरकार ने उसका एक रास्ता निकाला। एक खास दर पर हम लोगों को वह जमीन उनके कब्जे में है, उनके नाम पर रजिस्ट्री कर देंगे। उनके पोजीशन में जो जमीन है उन्हें जमीन प्राप्त हो जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव था। 3 मुख्यमंत्री आए और चले गए। 3 मुख्यमंत्री का अर्थ है 3 पार्टियां आई और गई। और कितना कलेक्शन हुआ? 76 करोड़ कलेक्शन करके रह गए। 25,000 करोड़ इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर में अनधिकृत जमीन को वास्तव में देकर उस पैसे से जम्मू कश्मीर में बिजली का बल्ब जलाने की जो योजना थी वो लालटेन तक ही रख दिया गया। 76 करोड़ में तो हर घर को एक लालटेन दी जा सकती थी, बल्ब नहीं दिया जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में हुआ और केंद्र सरकार उस भ्रष्टाचार पर इसलिए नहीं कुछ कर सकती थी कि हमारे हाथ और पैर बंधे हुए थे। 370 जाने के बाद केंद्र सरकार के 829 कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। मैं 2 कानूनों की चर्चा करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में 8 लोग दिव्यांग हैं, 8 लाख दिव्यांग हैं। 1999 में भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए नेशनल
ट्रस्ट बनाया था। 1999 से लेकर 2019 तक 20 सालों तक 8 लाख दिव्यांगों तक वह ट्रस्ट नहीं पहुंच पाया। 5 अगस्त के बाद 8 लाख दिव्यांगों को लगा वे भारत के सम्मानित नागरिक हैं, भारत का संविधान उन्हें नागरिक समझता है, उन्हें वह सब अधिकार देता है जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। राइट टू एजुकेशन, जिन बच्चों की बात की जा रही थी, जिस प्रकार से बच्चे स्कूल खुलने के बाद हंसते कूदते स्कूल जा रहे थे, जिनके हाथों में पत्थर दिया जा रहा था, उनके हाथों में हमने कलम और कंप्यूटर पकड़ाने का काम किया है। यह 370 जाने का परिणाम है। यह आर्थिक क्रांति क्यों हुई, मैं उसका एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के किसान, जम्मू कश्मीर के जीडीपी में सेब का 8% योगदान है, लेकिन सेब के साथ वहां मक्का भी होता है, वहां धान भी होती है, वहां सब्जियां भी होती है। भारत सरकार ने 370 हटाया देश के हित में, वह हित किसानों का हित था, वह आर्थिक क्रांति का हिस्सा था। वो मैं कुछ आंकड़े देता हूं। मक्का का उत्पादन में 10 से 12 क्विंटल मक्का का उत्पादन होता था। अब जो हस्तक्षेप हुआ है वह उत्पादन बढ़कर 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया। मक्के का दर 1600 रुपये क्विंटल था, जो 16,000 रुपये पर क्विंटल मिलता था उन्हें पर हेक्टेयर, अब 26,500 रुपये मिल रहा है। धान की खेती की बात मैं करना चाहता हूं। 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर धान होती थी, जिससे किसानों को 13,000 मिलता था पर क्विंटल। अब 60 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया है, जो किसानों को लगभग 17,000 पर क्विंटल मिलना शुरू हुआ है। मैं वेजिटेबल्स की बात करना चाहता हूं। 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर 1,000 रुपए के रेट से 65,000 मिलता था, अब उनको 1,95,000 पर हेक्टेयर में मिल रहा है। और प्रत्येक किसान को 0.35 हेक्टेयर में 19,544 रुपए का लाभ हो रहा है। इन सभी परिवर्तनों से जो लोग शहरों से बाहर किसानों तक, गांवों तक पहुंच ही नहीं पाए, घाटी तक पहुंच नहीं पाए, पहली बार केंद्र सरकार के 2 दर्जन से अधिक मंत्री गांव गांव, घाटी घाटी, सड़क, एक एक घर में पहुंचे। हिंदुस्तान के इतिहास में जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में बैठी हुई कार्यपालिका के लोग कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर का एक एक इंच भूमि में यह अनुभूति होनी चाहिए कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी 0 माइल है। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं के साथ 35A के कारण भेदभाव होता था, उस भेदभाव को समाप्त करना जनहितकारी है या जन विरोधी है? यहां ऐसा प्रस्तुत किया गया कि जम्मू कश्मीर के सारे राजनीतिक दल के नेता बंद पड़े हुए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो एमएलए 2004 में थे, 2008 में थे, उसके चुनाव के बाद थे, सभी विधायकों की सूची ले लीजिए जो पूर्व विधायक हैं। 98% लोग सड़कों पे, गलियों में, सभाओं में, होटलों में उन्मुक्त घूम रहे हैं। बंद कौन हैं? जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, चाहे आवाज से या पत्थर उठाने वाले। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, 500 से अधिक लोग बंद नहीं हैं। जो लोग हिंदुस्तान की एकता अखंडता पर प्रहार करेंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो कि पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, हिंदुस्तान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।
हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर हमारी विचारधारा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू